خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل رضوان ظہیر پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اسکرین شو ہو رہا ہے؟ اگر ساری چیزیں کلیئر ہے تو آپ ہمیں کومنٹس کر کے بتائیے۔ ہم آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم مانو یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں جو 2024-25 سیشن میں ایڈمیشن کے لیے بی ایڈ یا ڈی ایل ایڈ ان کا جو انٹرنس ٹیسٹ ہونے والا ہے یعنی داخلہ امتحان، تو اس داخلہ امتحان میں شامل ہونے والے سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے میں اس ویڈیو کو لایا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ مینٹل ایبلٹی یا ریزننگ جو ہے یہ بی ایڈ میں کیا ہوتا ہے۔ بی ایڈ والوں کے لیے 10 نمبر ہے، اور اگر کوئی کینڈیڈیٹ ڈی ایل ایڈ کا ہے تو ڈی ایل ایڈ والوں کے لیے یہ 30 نمبر کا پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہو گئی ہے بی ایڈ یا ڈی ایل ایڈ کے کسی بھی اسٹوڈنٹس کے لیے۔ ہم اس پر بالکل سیریز کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لا رہے ہیں۔ یہ سیریز کی تیسری ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے نمبر سیریز کو کور کیا تھا۔ کیا نمبر سیریز یعنی ریزننگ میں نمبر کے کوشچنس کس طریقے سے پوچھے جاتے ہیں، کیا کیا پیٹرن اس میں ہو سکتے تھے، میں نے ان سبھی کو کور کیا تھا۔ اب اس میں ایک اسٹیپ اور آگے بڑھتے ہوئے الفابیٹ نمبر، یعنی اس سے پہلے آپ 1 2 3 4 5 اس طریقے کا جو نمبر ہے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اب اسی کی جگہ پر ہم کیا کریں گے، اے بی سی ڈی ای ایف اس طریقے کا کوشچنس آپ کو ملے گا، یعنی پیٹرن آپ کو اب انگریزی کے جو الفابیٹ ہے، انگریزی جو حروف ہے اس حروف سے کوشچن آپ کو رہے گا۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کچھ تھیوری دیکھ لیتے ہیں، کچھ ایگزام کا پیٹرن کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی ملتی رہے۔ ہاں، وعلیکم السلام آپ سب ہو کا۔ ناہید پروین، مجاہد الاسلام، انس اسلامک کلب، آمین خان یا آفتاب ولاگز، اسٹوری ہوسٹ رحمت عالم، روح النظیف، سیکریٹ اسٹار، مجاہد الاسلام، عائشہ خانم، نسیم، رضا احمد، وعلیکم السلام آپ سب ہوگا۔ چلیے ہم جب بھی انگریزی کے جو الفابیٹ ہے، الفابیٹ کا اس سے اس پر بیسڈ کسی بھی طریقے کوئی بھی کوشچنس دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے جو بنیادی چیز ہے، پہلی چیز کیا ہونی چاہیے کہ انگریزی جو حروف ہیں ان کا پلیس ویلو، یعنی انگریزی کے کون سا حرف کس نمبر پر آتا ہے وہ آپ کو ضرور یاد ہونی چاہیے۔ کیا ہے کہ انگریزی کا کون سا حرف کس نمبر پر آتا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو سب سمپل جو ہے 1 2 تو آپ کو یاد رہتا ہے کہ ہاں ایک A1 پر آتا ہے، B2 پر آتا ہے، C3 پر آتا ہے، لیکن پورا آپ کو ایک دم A سے لے کر کے Z تک آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کس کا پوزیشن کیا ہے۔ یہ اسکرین پر میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک تو آپ کو سیدھے ڈائریکشن میں اور دوسرا آپ کو الٹے ڈائریکشن میں، دونوں طرف سے بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ انگریزی کا کون سا حرف کس نمبر پر ہے۔ جیسے یہ آپ کا آئی ہے، آئی کے کون سے نمبر پر ہے، 9ویں نمبر پر ہے۔ یو ہے، یو آپ کا کون سے نمبر پر ہے، 21 پر ہے، اور ٹی آپ کا کیا ہے، 20 نمبر پر ہے۔ تو آپ سمپل سا، لیکن اتنا بڑا لمبا جو دیا ہوا ہے آپ اسے آسانی سے نہیں یاد رکھ پائیں گے۔ اس کے لیے کیا ہے، ایک شارٹ ٹرک آپ کو میں بتاتا ہوں، جس شارٹ ٹرک سے آپ یاد کر لیں گے۔ بس آپ صرف یہ یاد رکھیے، ای جے او ٹی وائی، کیا آپ کو یاد رکھنا ہے، صرف اور صرف ای جے او ٹی وائی۔ تو ای جے او ٹی وائی اگر یاد رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ جیسے ای آپ کا کیا ہے، یہ 5ویں نمبر پر آتا ہے، جے آپ کا 10ویں نمبر پر آتا ہے، او آپ کا 15ویں نمبر پر آتا ہے، ٹی آپ کا 20ویں نمبر پر، اور وائی آپ کا 25ویں نمبر پر آتا ہے۔ کیا ہوا، نیٹ ورک کٹ گیا تھا؟ اچھا نیٹ ورکنگ ایشو آ گیا تھا، ویڈیو لگتا ہے رک گیا ہے۔
पता नहीं क्या मसला हो गया जी। एक मिनट। ऐसा कुछ लगता है कि शायद नेटवर्किंग इशू आ गया है, लेकिन हम क्या करते हैं, चलिए क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक याद रखना है कि एक आपका सीधे डायरेक्शन में और दूसरा उल्टे डायरेक्शन में। सीधे डायरेक्शन में आपका क्या होगा कि ई आपका 5वें नंबर पर आएगा, जे आपका 10वें नंबर पर आएगा, ओ आपका 15वें नंबर पर आएगा, टी आपका 20वें नंबर पर, वाई आपका 25वें नंबर पर आएगा। अब जैसे ही हम इसमें से बैक आते हैं, रिवर्स डायरेक्शन अगर किसी को पता करना हो तो उसको हम देखेंगे। उससे पहले देख लीजिए, अगर हमको ये शॉर्ट ट्रिक याद है तो इसके बाद हम किसी का भी निकाल लेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपको अगर 13वें नंबर पर कौन सा है अल्फ़ाबेट का, तो आप इधर से एक एक करके काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे, एक से लेकर 13वें जाएंगे वहां पर कौन है। दूसरा आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि 13 आपका क्या हो रहा है, 10 + 13, 10 + 3, यानी आपने देख लिया था कि जे जो है वो कैवे नंबर पर है, 10 नंबर पर है। उसके बाद आप सिर्फ उसमें 3 ऐड करेंगे, के एल एम। तीसरे नंबर पर आपका क्या आ रहा है जी, के एल एम। अब उसके बाद एम के बाद एन जो आ जाता है वो आपका हो जाएगा। तो उसमें से जैसे ही हमने 3 ऐड किया, एम जो आपका आया ना, ये तीसरा नंबर वाला, यही आपका क्या हो जाएगा, 13वें नंबर पर आ जाएगा। अब चलिए उसको जैसे देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, एम का चेक किया था ना, एम कैवे नंबर पर है, तो 10 + 3 कर दिया था, तीसरे 13वें नंबर पर आपका एम आ गया था। अब उसमें देखते हैं दूसरा, अगर आपको कोई पता करना हो कि 22वें नंबर पर कौन आता है, क्या है 22वें नंबर या 23वें नंबर पर, कुछ कोई भी ले लीजिए। तो आपको पता है कि हाँ, शॉर्ट ट्रिक में ई जे ओ टी वाई में टी आपका कैवे नंबर पर है, टी आपका 20 नंबर पर है। तो यहाँ पर भी हमको उसमें क्या करना है, 3 और ऐड कर देना है। तो टी, टी के बाद यू वी डब्लू, डब्लू आपका क्या है, 23 पर है। ठीक है, चलिए हम जिसको देख लेते हैं कि टी आपका कौन से नंबर पर है, सॉरी डब्लू, डब्लू आपको यहाँ पर मिल गया ना, ये क्या है, 23वें नंबर पर है। अब उसी तरीके से ये तो आपका सीधे डायरेक्शन वाला होगा। यहां पर आप ये देख लीजिए कि उल्टे डायरेक्शन में, अगर रिवर्स डायरेक्शन में कोई है, क्या है, कोई रिवर्स डायरेक्शन में यानी उल्टे तरफ से है, तब उसके साथ क्या होगा। अगर उल्टे तरफ से है, उल्टे डायरेक्शन में, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, किसी का भी नंबर पता करने के लिए शॉर्ट है कि 27 में से उस नंबर को घटा देंगे। क्या करेंगे, टोटल अल्फाबेट क्या होते हैं, टोटल अल्फाबेट आपका 26 होता है। लेकिन आपको क्या करना है, उसमें से जब रिवर्स किसी का पोजीशन पता करना हो उल्टे तरफ से, तो हम 27 में से घटाएंगे। जैसे हमें अगर मान लेते हैं कि जे का डायरेक्शन पता करना हो, जे हमारे पास का क्या है, जे का हमें पता था कि जे 10वें नंबर पर आता है। अगर उल्टे तरफ से यानी जेड के तरफ से अगर हम लिखेंगे, तब आप जे का क्या होगा, तो आप 27 में से 10 घटाएंगे, आपके पास क्या आएगा, 17 आएगा। तो जे का जो पोजीशन है उल्टे तरफ से क्या है, 17वें नंबर पर है। ठीक, चलिए उसी तरीके से अगर हमें आप पता करना हो एच का डायरेक्शन क्या है, उल्टे तरफ से, अगर सीधे तरफ से आपको एच देखना हो तो आप क्या करेंगे, ई आप देखेंगे कि उसके नजदीक वाला है जो कि 5वें नंबर पर है, एफ जी एच, 6 7 8, एच आपका क्या आ गया, 8वें नंबर पर आ गया। अगर एच का उल्टे तरफ से अगर डायरेक्शन आपको पता करना हो, तब आप क्या करेंगे, हम एच को क्या सीधे डायरेक्शन पता कर लेंगे, क्या है, 8 है। अब हम 27 में से क्या करेंगे, 27 में से 8 घटाएंगे, तो आपके पास जो आएगा वो क्या होगा, एच का डायरेक्शन होगा, यानी 19।
एच को आप क्या करेंगे 19 पर आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पर चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप उसको बिल्कुल वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे चलिए अगर नीचे वाले में देख लीजिए, ये उल्टे तरफ से हमने क्या किया है, तो ये 13 हो गया, 14 15 16 17 18 19, ये आपका क्या आ गया, एच आपका 19वें पोजीशन पर आ गया। आप उल्टे तरफ से इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया हम किसी भी नंबर का सीधा डायरेक्शन या उल्टा डायरेक्शन किस तरीके से रखेंगे। तो चलिए अब इसी पर हम बेस्ड जो है क्वेश्चन आंसर है, सवाल जवाब, वो आपका हम करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये एक सवाल दिखाई दे रहा है, दर्ज झेल में से गलत की निशानदेही कीजिए, कौन सा रॉन्ग है। यहाँ पे आपसे पास लिखा है MDH NFE OHC PED QBF, इतना सारा आपका यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है। अब इसमें आपको ये चेक करके बताना है कि गलत किस में है। क्या MDH वाले में गलत है, NFE वाले में गलत है, OHC में गलत है, PED में गलत है, या फिर QBF में गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 में बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब। चल, हाँ, तो यहाँ पर आपको इसमें से देखना है कि पहले पैटर्न क्या है, आपको वो पता करना है कि इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न पता करने के बाद तब जाके आप आगे क्या करेंगे, इसका सही जवाब ढूंढ पाएंगे। तो MDH में आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये आपका क्या है, बढ़ते हुए सीरीज में है। एक चीज तो आपको ये जरूर पता चल गया क्या है, एम सॉरी M है, D है और H है। तो इसका जो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपके लिए लिख कर लाया हूं कि MDH में देखिए क्या है कि जो आपका ये पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न में आपका M का पोजीशन 13 है, D का पोजीशन 4 है, H का पोजीशन 8 है। कुल मिला के इन सभी का जोड़ क्या हुआ, 25 यानी 25 हो गया। ठीक, NFE दूसरा वाला था, उसमें N का पोजीशन 14 है, F का पोजीशन 6 है, E का पोजीशन 5 है। अब इन सभी का जोड़ जब हम कर रहे हैं तो 25 आ रहा है। लेकिन OHC जो है, इनमें से O का पोजीशन 15 है, H का 8 है और C का 3 है। इन सभी का जोड़ करेंगे तो ये 26 हो जाएगा, बाकी सबका 25 25 आ रहा है। तो OHC वाला आपका क्या है, ये गलत हो जाएगा। ये आपका OHC आपके ऑप्शन में जो दिया गया हुआ है, ऑप्शन सी, ये गलत है। क्यों, क्योंकि बाकी सभी का जोड़ जो है ना 25 आ रहा है, इसका जोड़ आपका क्या है 26 आ रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी खास जबान में विराट को IVART के शक्ल में लिखा जाता है, तो उसी तर्ज पर रोहित को कैसे लिखा जाएगा। किसी खास जबान में यहाँ आपसे ये कहा गया है। चलिए हम देखते हैं कि खास जबान में यहां पर क्या किया है। यहां पर वैसे तो आपको देखने में तो दोनों सिर्फ और सिर्फ नाम ही देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर नाम में भी कोई ना कोई एक लॉजिक छुपा हुआ है। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे, चलिए आप लोगों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इनमें से ये देखना है, दो दो हरूफ जो है ना, VI को क्या कर लेना है, यानी पहला जो V है और दूसरा I है, उसको उलट देना है, तो IV हो गया। RA है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, एक दूसरे को उलट देना है, तो आपका ये AR हो जाएगा। और T जो लास्ट वाला पांचवा वाला है, पांचवा को आप 10 का 10 छोड़ देंगे। तब देखिए RO में हम क्या करेंगे, RO में हम यहाँ पर RO को OR कर देंगे, यानी पहले दोनों को एक दूसरे से चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद HI जो है, इसको भी हम एक दूसरे से चेंज करके क्या करेंगे, IH, और T अपनी जगह पर रहने देंगे। तो आपका ORIHT किस में है, ऑप्शन ए में दिया हुआ, इस वजह से ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ आपको क्या दिया हुआ, 16 में से हमने 2 घटाया है तो 2 बचा है, 9 में से 3 घटाया है तो हमारे पास क्या बचा है, 0 बचा है, 81 में से हमने 1 घटाया है तो हमारे पास क्या बचा है,
8 बचा है। अब बताइए यहाँ पर आपको लॉजिक क्या देखने को मिल रहा है, अगर 64 में से 4 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 4 होगा, 2 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा? बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब? दुरुस्त जवाब बताने क्या होगा? चलिए, यहाँ पर हमें क्या ये देखने को मिल रहा है, 16 को आप क्या कीजिए, 16 का जो स्क्वायर है उसको हम लिख लेंगे। 16 क्या है, ये 4 का स्क्वायर है। अब उसमें से जब हमने 2 घटाया तो क्या हो गया, 2 बच गया। मतलब स्क्वायर आप हटा दीजिए, सिर्फ इस 2 4 वाले को काउंट कर लीजिए कि 4 में से हमने 2 घटाया तो 2 बचा। उसके बाद देखते हैं कि 9 है, 9 ये 3 का स्क्वायर है, इसमें से हमने 3 घटाया, मतलब स्क्वायर वाला को हटा दीजिए, सिर्फ 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 81 ये क्या है, 9 का स्क्वायर है, 9 में से जब हम 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 8 बच जाएगा। उसी तरह ये 64 माइनस 4 है, 64 जो क्या है आपका 8 का स्क्वायर है, 8 में से जैसे हम 4 घटाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटा दीजिए, सिर्फ 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या बच गया, 4 बच गया। क्या होगा आंसर यहाँ पे, 4 आपके ऑप्शन ए में दिया गया हुआ है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर किसी खास जबान में FLA TTER को 723889 लिखा जाए और मदर को 46815 और 9 लिखा जाए, तो उसी तरह MAM यानी MMOTH को क्या लिखा जाएगा? बताइए, किसी खास जबान में। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको क्या करना है, ऑप्शन A B C D 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं। 4 ऑप्शंस में से कभी कभी एक पैटर्न आपका ये भी होता है कि उसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन में ही इसका क्या करते हैं, एक फॉर्मूला फिट कर देते हैं, यानी क्वेश्चन ही हम बना देते हैं और उसी के बेस पर हमारे पास तब क्या होता है, उसका हमें जवाब देना होता है। जैसे हमने एफ क्या किया, इसको आप एक तरीके से बहुत आसान से सोल्व कर सकते हैं, अगर इस दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख दिया जाए। जैसे एफ के लिए हम क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं, एफ एल के लिए 2, ए के लिए 3, टी के लिए 8, फिर से टी के लिए 8 और आर के लिए 9। और यहाँ पर 46819 जो है, इसमें भी हम एम को क्या कर देते हैं, 4 करते हैं, ओ को 6 है, टी को 8 है, एच का 1 है, ई का 5 है और आर का 9 है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये जो जो नंबर दिया हुआ है ना, आपको उसी से इसमें ये जो हरूफ दिए हुए हैं इसका पैटर्न फाइंड करना है। जैसे एम है, एम के लिए आपको ऊपर देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाँ, एम के लिए आपको यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो एम को आप क्या कर दीजिए, 4 लिखिए। उसके बाद ए है, ए आपका कहाँ पर है, यहाँ पर ए है, ए के लिए 3 लिखा गया है, तो हम यहाँ पर 3 कर लीजिए। फिर हम एम एम देखेंगे तो एम आपको क्या आया है, एम के लिए आपको 4 आया है, फिर भी आपको यहाँ पर भी 4 आया है। अब देखते हैं कि 4344 कहाँ पर है, 4344 यहाँ पर है, 4344 यहाँ पर है, तो डी वाला आपका कट गया, सी वाला आपका कट गया, ये जो दोनों बच रहा है। अब इनमें से फिर हम ओ का पोजीशन मालूम करेंगे। ओ आपको यहाँ पर मदर वाले में दिया गया हुआ था, क्या था, 6 था, तो 4344 6 इन दोनों में है, तो उसके बाद एक और हम चेक करेंगे, टी टी के लिए हमें क्या था, 8 आया था, 8 आया था, तो इसमें कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है ना, यहाँ पर 6 के बाद 8, तो ए वाले को सही कर देंगे, बाकी सब आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। HOPE होप, IPQF MOLT, यहाँ पर क्या पैटर्न है और यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? बताइए क्या होगा दुरुस्त जवाब? बताइए दुरुस्त जवाब आपका क्या होगा? यहाँ पर होप, HOPE में देखिए आपको क्या पैटर्न किया दिया गया है,
HGHIJKLMNOPQRS। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है आपका आंसर, यानी इसका पैटर्न आपको क्या दिया गया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप जैसे ही देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें जो आपका पैटर्न यूज किया गया है ना, एच के साथ आपका पहले वाले से कुछ भी रिलेशन नहीं है, बल्कि सीधे हम एच को यहां पर लेके आए हैं। एच के बाद अगला नंबर का आता है आई आता है, ओ के बाद अगला नंबर आपका पी आता है, पी के बाद अगला नंबर आपका क्यू आता है, ई के बाद अगला नंबर आपका एफ आता है। यानी यहां पर एक हर्फ लिखा हुआ, उसके जस्ट बाद में उसका दूसरा हर्फ लिख दिया गया हुआ है। उसी तरीके से एम का हम करेंगे। एम के बाद आप क्या होता है, एन आता है, ओ के बाद आपका पी आता है, एल के बाद एम आता है, टी के बाद यू आता है। एन पी एम यू, एन पी एम यू आपके किसी ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन बी में है, इस वजह से ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मोबाइल यानी MOBILE NQEMQKNH, बताइए यहाँ पर क्या होगा दुरुस्त जवाब। मोबाइल MOBILE, ठीक है, ये तो ठीक है। इसके बाद इससे आपका ये बना हुआ है एन, एम के बाद आपका क्या आता है, एन आता है। यहाँ पर आपका क्या हो गया, +1 हो गया। ओ के बाद आप देखेंगे को ओ के बाद +2 है, यानी सिर्फ एक पी गैप करके तब क्यू आता है। बी को जब हम देखेंगे तो बी के बाद CDE, यानी बीच में 3 का गैप है। आई को जब हम देखेंगे ना तो इसमें आप क्या कर लीजिएगा, 4 का गैप कर लीजिएगा। उसी तरीके से एल में जब आप आएंगे तो एल में आप 5 का गैप करेंगे। ई में आप आएंगे तो ये आपका 6 का गैप करेंगे। तो ये आपका क्या है, पहला वाला जो गैप है जस्ट उसके बाद लिखा गया, उसके बाद वाला जो भी है उसमें से एक 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 बढ़ते गया हुआ है। जैसे यहाँ पर चलिए हम देखते हैं पी वाले में क्या होगा। पी के बाद क्यू आता है तो ठीक है, पहला आपका क्यू आ जाएगा। क्यू आपके चारों ऑप्शन में दिया गया, इस वजह से हम इसके आगे भी जाएंगे। एच के बाद आई, तब उसके बाद जे आएगा दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पर क्या है, जे आपका ए वाले में है, ये भी होगा, बी वाले में, सी वाले में ये भी है, डी वाले में नहीं, ये आपका कट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको तीसरे नंबर पर जाना है। ओ के बाद तीसरा नंबर पी क्यू आर, आर आपका कहाँ पे है, तीनों में है, तो ठीक है। चलो उसके बाद एक और हम चले जाएंगे एन के बाद, ओ पी क्यू आर, इन के बाद भी हमारा क्या आएगा, आर आएगा। आर आपका ऑप्शन ए में रिपीटेड है ना, तो ए वाला सही हो जाएगा, सी और बी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अराउंड को क्या कहते हैं, RAUODNGROUND, इसमें क्या होगा, इसका क्या होगा बताइए। AROUND, देखिए इसमें आपको कुछ ना कुछ एक लॉजिक ढूंढना है, पैटर्न ढूंढना है, उसके बाद आपको उसी पैटर्न पर उसका जवाब बताना है। बताइए क्या होगा। बताइए यहाँ पर जवाब आपका क्या होगा। तो देखिए ए को क्या किया गया है, AROUND में ए के बाद आपका क्या है, AR जो है उसी को RA कर दिया गया है, यानी एक को दो से बदला गया है। OU है, इसको UO कर दिया है। DN है तो इसको एन, यानी ND है तो इसको DN कर दिया गया। उसी तरीके से अब हम GR को क्या करेंगे, RG करेंगे। OU है तो इसको UO करेंगे। ND है तो इसको हम क्या करेंगे, DN करेंगे। RGUODN, RGUODN आपके किस ऑप्शन में है,
आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इस वजह से ये आपका सही जवाब है। आगे देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई डी ई जी एफ, मान लीजिए ए बी सी डी कुछ भी दिया हुआ है, बस आपको इसका पैटर्न ढूंढना है और इसका सही जवाब आपको पता करना है। बताइए क्या होगा सही जवाब। ए बी डी सी एफ जी आई एच में तो देखिए ए बी ये तो आपका बिल्कुल लगातार है, यानी एक सी डी को इसको क्या किया है, इसको एक तो इधर से बदल दिया गया है और एक इधर से बदल दिया गया है। एफ जी है, ये भी आपका लगातार है। एच आई होता है ना, तो यहाँ पर एक इधर से चेंज करके उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। उसी तरीके से डी ई एफ जी में ये भी, ये तो बराबर है, यहाँ पर इसको उल्टा किया गया हुआ है। तो अब उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन आंसर जो होगा ना, उसमें भी आपको उसका कुछ ना कुछ एक उल्टा ढूंढना पड़ेगा। एम एन ये आपका सही है, तो इसको हम देखेंगे। एस टी भी सही है, ये भी सीरीज में है। एक्स वाई ये भी सही है। डी ई ये भी सीरीज में है। तो चलिए इसके बाद जो दूसरा है, हम क्या करेंगे, आर पी, पी क्यू आर, इसमें आपका बीच में लंबा सा गैप आ जा रहा है, इस वजह से ये आपका कट हो गया। ऑप्शन सी वाले में भी देखेंगे, डी ई एफ जी, ये इसको लगातार ही लिख दिया गया, तो जब एफ जी कर दिया गया तो ये आपका नहीं होगा। डी वाले में देखेंगे, एक्स वाई जेड ए, एक्स वाई जेड ए में जेड के बाद अगला नंबर क्या आता है, ए आता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सीरीज में बढ़ते हुए में सिलसिला में ही है। लेकिन जो बी वाले में है, एम एन ओ पी होना, क्या एम एन ओ पी होना चाहिए, तो ओ पी को एक दूसरे से क्या किया गया है, उल्टा कर दिया गया है और पी ओ कर दिया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जे आई एच के पी ओ एन क्यू डब्ल्यू यू वी एक्स आर एस टी यू के एन एम एल के एन एच आई जी जे। क्वेश्चन नंबर 9 में बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखते हैं, जी एच आई जे के, इसमें कुछ ऐसा पैटर्न है कि बीच वाला जो देखेंगे ना, ये आपका बिल्कुल सीधा साधा है, यानी सीधा बढ़ते हुए सीरीज में है। यू भी यहाँ पर भी देख लिए, सीधा हुआ बढ़ते सीरीज में है। बाकी जो है, और पहला वाला जो है, उसी के बाद वाला लेटर आपका ये के आ गया, जैसे जी एच आई जे, जे क्या होता है, जे के बाद के आ गया है। पी के बाद आपका क्या है, क्यू आया है। डब्ल्यू के बाद आपका क्या आया है, एक्स आया है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जी एच आई जे, हम इसको यहां से शुरू करें, तीसरे नंबर से शुरू करके राइट टू लेफ्ट की तरफ से जाए। यहाँ पर भी एन ओ पी क्यू हम ऐसे कर लें, और जैसे पी आ रहा है तब हम यहाँ पर चेंज कर लें। यू वी डब्ल्यू हम इस तरफ से आए, और इसके बाद जैसे ही हमें चेंज करना, उल्टी मारना, तो उसके बाद वाला चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो उसी तरीके से ऑप्शंस में भी देखते हैं किस में पैटर्न है। के एल एम एम एन ओ, एल एम एन ओ आना चाहिए यहाँ पर ना, ए वाले में, तो ये के दे दिया हुआ तो ये कट हो जाएगा। पी वाले में देखते हैं, एस टी एस आर, ये भी सीरीज गलत है। एच आई जे, जी एच आई आपका यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, जी एच आई होना चाहिए, ये भी सीरीज गलत है। अब यहाँ पर है के एल एम, हाँ ये एक सीरीज सही है, उसके बाद जो चौथा वाला नंबर है वो एम के बाद एन आ गया है, तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि डी आर आई वी ई आई डी आर वी बी ई जी यू एम, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा सही जवाब, बताइए क्या होगा। यहां पर हम देखेंगे, डी आर आई वी ई में क्या किया गया है, इसको उल्टा पलटी किया गया हुआ है। किसको उल्टा गया है, किसका पलटी किया गया है, ये भी आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 10 में।
देखिए डी जो आपका पहले नंबर पर है उसको हमने क्या किया है, तीसरे नंबर पर डाल दिया है। एक से आपका क्या गया है, एक से आपका तीसरे नंबर पर चला गया है। आर जो है वो आपका कहाँ गया है, दूसरे से चौथे नंबर पर गया है। क्या, दूसरे से चौथे नंबर पर। आई जो है वो आपका क्या हो गया है, तीसरे से, हाँ, दूसरे नंबर पर चला गया है। फिर देखेंगे वी जो है वह आपका चौथे से पांचवे पर चला गया है। और ई जो है वह आपका पांचवा वाला क्या हुआ है, पांच से पहले नंबर पर आ गया है। तो इसमें देखिए आपको इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक देखने को मिल रहा है। क्या लॉजिक है जिस लॉजिक की बुनियाद पर इसका सवाल बना है, उसको उल्टा पलटी किया गया हुआ है। जैसे जैसे उल्टा पलटी इसको किया गया हुआ उसी तरीके से आप भी करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। यानी जो जहां पर है जस्ट उसका उल्टा। ठीक, जैसे BEGUM है, क्या है, BEGUM। तो सबसे पहला वाला जो बी है, उस बी को हम क्या करेंगे, उसमें अब देखिए लास्ट में एम था ना, तो एम लास्ट वाले को हम सबसे पहले एम में ले आएंगे। बाकी दूसरा तो आपका इसमें कुछ है ही नहीं। MGBEU आपका ये सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि अब देखिए यहाँ पर ड्राइव में ई जो था ना, ई सबसे लास्ट में था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन के बाद आंसर जो आया, ई आपको सबसे पहले में आ गया ना। तो यहाँ पर BEGUM है, एम क्या है, पांचवें नंबर पर है। तो जो अगला आएगा एम आपका फर्स्ट नंबर पर आना चाहिए ना। तो यहाँ पर बाकी किसी में भी एम से शुरू है ही नहीं, तो बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवालिया निशान की जगह क्या आएगा, ZUP क्वेश्चन मार्क एफ, आई है, के है, एम है या फिर एन है। इसमें आपको इसका क्या करना होगा, पहले इसका नंबर प्लेस वैल्यू पता कर लेना होगा कि Z का क्या है। चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। Z आपका क्या है, सीधे से आपका 26 नंबर पर है। U आपका क्या है, 21 नंबर पर है। फिर आपका P है, P आपका क्या है, 16वें नंबर पर है। फिर देखेंगे उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो इस, और फिर उसके बाद अगला क्या है, एफ है। एफ, एफ आपका क्या है, छठे नंबर पर है। तो इसमें देखिए आपको पैटर्न क्या समझ में आया, सब में समझ में आया ना कि पाँच पाँच घटता हुआ जा रहा है। 26 में से 5 घटा तो 21 हो गया। 21 में से 5 घटा तो क्या हुआ, 16 हो गया। 16 में से हम फिर से 5 घटाएंगे, क्या करेंगे, 5 घटाएंगे तो 11 आएगा। 11वें नंबर पर कौन सा हर्फ आता है, तो आपको फिर से यहाँ पर उसको पता करने के लिए EJOTY याद रखना चाहिए। तो ई के बाद पांचवें पर है, जी 10वें नंबर पर है, और 11वां नंबर दिखाना है, आपका पी आ जाएगा। क्या होगा, जस्ट आपका उसके बाद वाला जो नंबर है वो आपका सही आंसर होगा। सॉरी, जे के बाद आपका क्या आता है, के आता है ना। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन मार्क जो है वहां पर आपका क्या आना चाहिए, तो आपका के आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंदरजैल सिलसिले में सवालिया निशान की जगह क्या आएगा, ZUQ क्वेश्चन मार्क और फिर एल। कुछ ना कुछ पैटर्न तो आपको देखने को मिल रहा है, बस वही पैटर्न आपको क्या करना है, इसमें निकालना है। देखिए इसके लिए भी आपको क्या है, इसका नंबर वैल्यू पता होना चाहिए। Z आपका कितने नंबर पर आता है, Z आपका 26 26 नंबर पर आता है। T आपका क्या है, सॉरी U है, U आपका क्या होता है, 21 पर आता है।
क्यू आपका क्या है, ओ के बाद ओ पी क्यू, यानी आपका ये 17 नंबर पर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर आप देखेंगे कि एल है। एल आपका क्या होता है, 12वें नंबर पर आता है। अब देखिए इसमें पैटर्न आपको क्या मिला। सबसे पहले आपका क्या है, 26 है। 26 में से हम कितना घटाएंगे तो 21 आएगा, 5 घटाएंगे यानी -5 हो रहा है। 21 में से हम फिर कितना घटाएंगे तो 17 आएगा, -4 आ रहा है। तो इसके बाद जो अगला नंबर आएगा ना, उस नंबर पे आपको ये क्या करना है कि -3 घटा देना है। जैसे 17 है, 17 में से जब हम 4 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 13 आएगा। 13 में से फिर से सॉरी, 17 में से हमें क्या करना है, 3 घटाना है ना, वही तो गड़बड़ कह रहे हैं। आपका क्या, 14, और 14 के लिए आपका क्या होगा, चलिए यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ, क्यू दिया हुआ है ना। अब 14 वाले जो नंबर पर हम देखते हैं तो क्या होता है, हमारा एन आ जाता है। एन आपका क्या आता है, 14वें नंबर पर आता है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका ये क्या होगा, इन जो आपको देखने को मिल रहा है ना, इन आपका ऑप्शन डी में ये सही जवाब हो जाएगा। यानी एक एक घटते हुए आपका सभी चल रहा है। तो यहाँ पर 14 है, 14 के बाद 12 घटा, इसके बाद भी अगर इसमें कोई और नंबर होता ना तो उसके बाद ये आपका क्या होता है, 11वें नंबर वाले पे आ जाता। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो का। सवालिया निशान की जगह क्या आएगा, DEFHIJMNO, सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क जो कर लगा हुआ है, क्या आएगा। तो ये तो सीधा सा ही लग रहा है, DEF है, HIJ है। यहां पर आपको मिसिंग है, क्या मिसिंग है, जी। जे के बाद फिर आपको यहां पर मिसिंग है, के एल। एम है, एम के बाद एन, अब एन के बाद फिर मिसिंग है। तो पहले देखिए एक मिसिंग था, दो मिसिंग था, अगली बार तो 3 मिसिंग होगा। जैसे ओ है ना, पी क्यू आर, इसके बाद अगला जो होगा वो एस से शुरू होगा, STUV। कहाँ, STUV, इस तरीके से आपका आएगा। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, STU, आपका ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ए हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। किसी को भी किसी तरह कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी आप लोगों में से वो तमाम कैंडिडेट जो बीएड या डीएलएड का एंट्रेंस देंगे और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। मानो बीएड और डीएलएड का पूरा फुल नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के साथ अवेलेबल है। बाकी आप हमारे क्लास से भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास में आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगा, लाइव इंस्ट्रक्शन होगा, मतलब कोई सवाल वगैरह पूछने का ऑप्शन होगा। आप अपना सारा डाउट क्लियर कर पाएंगे। आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा जो ऑनलाइनर होगा। प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। मॉक टेस्ट आपका एग्जाम के टाइम पे लिया जाएगा। हम यूँ समझ लीजिए कि आपके एग्जाम की पूरी तैयारी करा दी जाएगी। अगर आप हम तैयारी के लिए जुड़ना चाह रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 88 0 444 7155, 88 0 444 7155। इस नंबर पर रब्ता करके आप हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स हासिल कर सकते हैं और फिर हमारे क्लास में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।